Hello everyone. So in this video, I'll be covering a very important part of Indian Penal Code that I'll be focusing on the important provisions of IPC so that you get a better idea about how to study the subject. And yeah, let's start with the video. And about the subject, as I talked earlier yesterday, कि इसमें जो सबसे important part है Indian Penal Code का, it is section number 1 to 120, the offenses part and the illustrations of the subject. So I thought that this is a very important subject because for every state, it will be covering approximately 12 to 14 questions in average. And this is actually a very big number for a judicial student. And I'll be covering this content from the point of view of prelims and mains also. Like for the now starting with the important points with regard to the sections of the act, right? Now let's start with the Indian Penal Code. So first of all, because there is examination around for prelims and for the important part, that is the offenses part also, I'll be covering that from mains point of view, right? And now starting with the act, guys, see, there are number of important provisions for different subjects, and this is actually a lottery subject because the content which is asked in the examination, it is not that technical. It is just the important provisions that need to be covered. The way it has to be covered, I'll discuss in the video, right? In case you have any queries regarding the part, you can just comment in the comment box, right? So I'll be starting with the video. First of all, I need to discuss about the important provisions that you need to cover for prelims also. Now starting with section number 3. So guys, you can just carry your bare act so that you can mark the important provisions and it will be a bit easy for you to learn. And after marking the provisions, this will be the important part that you need to revise later, right? Now section number 3, for punishment of offenses committed beyond but which by law may be tried within India. तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जैसे कि सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 के रिगार्डिंग मैंने जो इंडियन जुडिशियल प्रिपरेशन का ग्रुप है इसमें एक क्वेरी भी पोस्ट की थी रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस फॉर द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, राइट? इसके रिगार्डिंग मैंने 2-3 दिन पहले क्वेरी पोस्ट की थी. इट पर्टेन्स टू सेक्शन नंबर 4 कि अगर कोई भी ऑफेंस इट इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया, उस केस में क्या होगा? इट इज कवर्ड अंडर इंडियन पिनल कोड सेक्शन नंबर 4. तो इनके रिगार्डिंग जो सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 प्रीलिम्स में डायरेक्टली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं जिसमें आपको हेडिंग दी जाती है एंड यू हैव टू जस्ट गेस आउट द सेक्शन नंबर किस चीज में क्या चीज कवर्ड है. अब जो सेक्शन नंबर 6 है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये सेक्शन बताता है रिगार्डिंग इंडियन पिनल कोड में अगर कोई भी चीज कहीं पे भी प्रोवाइड की गई है उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा. द इंप्लाइड मीनिंग इज कि वो पूरे लॉ पे हर जगह एप्लीकेबल है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इफ वी टॉक अबाउट द जनरल एक्सेप्शंस, राइट, तो उस केस में बार बार लॉ में हर ऑफेंस के साथ इट विल नॉट बी रिटर्न कि अगर ये ऑफेंस होगा एंड इन केस ऑफ जनरल एक्सेप्शंस वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. बार बार चीजें रिपीट नहीं की जाएंगी. वंस समथिंग इज रिटन इट विल बी इंप्लाइड कि वो पूरे लॉ के ऊपर एप्लीकेबल है. दिस इज रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 6 ऑफ इंडियन पिनल कोड. और यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में सेक्शन नंबर 6 का हेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक मैंने सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 इनके हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कम से कम 100 सेक्शंस तक कवर किए जाए ताकि आपको एक आज जो इस क्लास का मोटिव था कि आपको थोड़ा प्रोवाइड किया जाए फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको तैयारी कैसे करनी है. जैसे ही जो मेंस वाला पार्ट आएगा आई विल बी जस्ट हाईलाइटिंग कि यहाँ पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो सेक्शन 6 के अंदर डायरेक्टली रेफरेंस दी गई है दैट थ्रू आउट द कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in chapter 4 entitled general exceptions.
और जनरल एक्सेप्शंस जो हैं दे आर फ्रॉम सेक्शन नंबर 76 टू 106। ये जो बात कर रहे हैं तो ये एक एग्जांपल है कि सारी की सारी जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी पूरे एक्ट पे। जब भी हम किसी पेनल प्रोविजन की या कोई इलस्ट्रेशन या किसी डेफिनेशन की बात करते हैं, पैरेलल जनरल एक्सेप्शंस को लेके चलना पड़ेगा। और इस वीडियो में काफी हद तक कंटेंट जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन सेक्शन को ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू द इलस्ट्रेशन पार्ट, अभी इस सेक्शन की इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं एंड दे विल बी रिपीटेड इन अदर सेक्शंस, जैसे कि ये अंडर द चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, यहाँ पे ये सेक्शन 82 की बात की गई है, राइट। अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर, ये सेक्शन 76 की बात की गई है। बाउंड बाय लॉ, जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है बाउंड बाय लॉ, 76 की बात की गई है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 76 आईपीसी, राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें डायरेक्टली ये वो सेक्शंस हैं 3, 4, 5, 6, 8, ये वो सेक्शंस हैं जिनकी डायरेक्टली हेडिंग्स पुट की जाती हैं एग्जामिनेशन में। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, आप बेयर एक्ट पे इन चीजों को मार्क कीजिए ताकि आपको पढ़ने में या एग्जामिनेशन में किन किन सेक्शन का ज्यादा ध्यान रखना है आपको इस चीज का आइडिया रहेगा। देन सेक्शन नंबर 11 जो कई बार स्टूडेंट स्किप करते हैं, दैट इज द पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो यहाँ पे आपको जो इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स का ध्यान रखना है, यू हैव टू मार्क द इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक कंपनी, और यहाँ पे जो और वाली ऑप्शन है, इस और का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि प्रीलिम्स में आपको ऑप्शन यहाँ पे एंड कर दिया जाएगा या डायरेक्टली आपको सेक्शन पुट किया जाएगा कि इन केसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं या नहीं इंक्लूडेड। तो आपको सेक्शन नंबर 11 भी मार्क करना है फॉर प्रीलिम्स। अब सेक्शन नंबर 14 दैट इज सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो वर्डिंग यूज की गई है, इट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट continued, appointed or employed in India by or under the authority of government। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 14। अब 14 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 19, दैट पर्टेन्स टू जज क्या है, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 19 फॉर प्रीलिम्स। इसमें फ्रेंड्स जो बेयर एक्ट जब आप देखेंगे, जो यहाँ पे वर्डिंग यूज की गई है, officially designated, point number 1, empowered by law, point number 2, not appealed against, point number 3, then if confirmed by some other authority would be definitive, point number 4, then who is one of a body of persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment, this is point number 5। तो आपको जब भी आप कोई भी क्रिमिनल लॉ या किसी भी तरह का लॉ रीड करते हैं, ट्राई योर बेस्ट कि जो डेफिनेशन पार्ट है, कोई ऑफेंस है, इसको आप पॉइंट वाइज डिवाइड कीजिए सो दैट यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि किस सेक्शन में कितने पॉइंट्स कवर्ड थे। आपको याद करना और रिकॉल करना बहुत इजी रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स ध्यान से इसकी आप इलस्ट्रेशन चेक कीजिए, जो पॉइंट नंबर ए इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ए, बी एंड सी, इसमें जो अथॉरिटीज हैं उनको दिया गया है एज अ डेजिग्नेशन ऑफ जज। बट आप इलस्ट्रेशन नंबर डी चेक कीजिए, डी के अंडर दे हैव यूज्ड द वर्डिंग अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। और आपको ध्यान में ये रहता है कि अगर उन्होंने टर्म यूज किया है मैजिस्ट्रेट, टर्म यूज किया है कि चार्ज भी हुआ और कमिटल की बात भी की है, दैट इज लोअर टू हायर कोर्ट, आपको लगेगा कि क्या ये जज है या नहीं है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पुट किया जाता है, बट इलस्ट्रेशन नंबर डी क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ी होती तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत हैं। आप इस इलस्ट्रेशन को अच्छे से मार्क कीजिए, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर इलस्ट्रेशंस, राइट। और सेक्शन नंबर जो 20 है दैट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन नंबर 20 के अंडर कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको इसका सेक्शन नंबर मार्क करना है
फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक फ्रेंड्स जो 20 सेक्शन नंबर तक हैं, आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सिर्फ डेफिनेशंस गो थ्रू करनी है। आपको मैं फर्दर बताता हूं कि आपको ये चीजें याद नहीं रखनी फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इनका रोल प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा है। डायरेक्टली सेक्शन नंबर या इलस्ट्रेशन पुट की जाती है फॉर एग्जामिनेशन। अब जो सेक्शन नंबर 21 है, दैट इज पब्लिक सर्वेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसका नंबर भी आपको मार्क करना है बियर एक्ट में, और आप ये सब पॉइंट्स इंडेक्स पे भी मार्क कर सकते हैं बियर एक्ट के। और आपको यहां पे ध्यान रखना है दैट सेक्शन 21 जो है पब्लिक सर्वेंट, इट कवर्स 12 कैटेगरीज, राइट। तो आपको यहाँ पे कैटेगरीज का नंबर लेना है। दैट सेक्शन नंबर 21 इट कवर्स 12 कैटेगरीज, ताकि जब भी एग्जामिनेशन में इन चीजों के बारे में पुट किया जाता है दैट द नंबर ऑफ कैटेगरीज कवर्ड अंडर सेक्शन 21 इज, या फिर जो इसके पॉइंट्स हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया कि सेकंड पॉइंट, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, राइट, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज, ठीक है, क्योंकि इस केस में दे आर अप्लाइंग द जुडिशियल माइंड, एंड जब भी जुडिशियल माइंड अप्लाई होगा तो कैटेगरी क्या होगी, दैट इज ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, राइट। एवरी ज्यूरीमैन, every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred, that is 6th point under section 21। तो आपको सबसे पहले इनकी जो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं इसको ध्यान में रखना है, और 12th पॉइंट ध्यान से पढ़ना, every person in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government। मतलब आपको अगर किसी भी पॉइंट में डाउट अराइज हो, अगर आपने सारे पॉइंट्स नहीं गो थ्रू किए, जो बेसिक रूल है आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इफ अ पर्सन इज अंडर द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट और इज गिवन द पे और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन, इन दैट केस ही विल बी डेजिग्नेटेड एज अ पब्लिक सर्वेंट, राइट। तो सेक्शन नंबर 21 तक जो आपको मैंने बताया अभी, ठीक है, ये थे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कवरिंग सम सेक्शंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको बताता चले जाऊंगा कि प्रीलिम्स में किस पे ज्यादा जोर देना है और मेंस में कौन से ऐसे सेक्शन है जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, राइट। सेक्शन नंबर 22 इज दैट एरिया जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रीलिम्स में जैसे कि अब ये डेफिनेशन क्या है, इट इज रिगार्ड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इसका आप कंटेंट ध्यान में रखना, दैट मूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू इंक्लूड। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया जाता है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या उसमें कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती। इट इज इंक्लूडेड, राइट, इट इज नॉट इंक्लूडेड, नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन दिया जाता है, ओनली ए ऑप्शन। तो ऐसा मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के ऐसा क्वेश्चन पुट किया जाता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। बट अगर जो मैं आपको बता रहा हूं कि इन सेक्शंस को आपने यहाँ पे इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी और आप ये सिली मिस्टेक्स कमिट नहीं करेंगे, राइट। तो मूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। मतलब चाहे वो डायरेक्टली लैंड है या कोई भी ऐसी चीज विच इज अटैच्ड टू द अर्थ डायरेक्टली हो या परमानेंटली उसको बांधा गया हो किसी भी ऐसी चीज से जो वो चीज अटैच टू अर्थ है, राइट। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू इंक्लूड ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्शन का ध्यान बहुत आपको रखना है यहाँ पे, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। तो ये भी जो डेफिनेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स आल्सो एंड फॉर मेंस आल्सो। मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज wrongful gain, wrongful loss। दोस्तों ये जो पार्ट है ना सेक्शन नंबर 23, जैसा कि कल मैंने बात की थी वीडियो में कि जो सेक्शंस कुछ ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये ऑफेंस है या नहीं है, राइट। कुछ सेक्शंस के अंडर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। तो यहां पे सेक्शन 23 एक ऐसा सेक्शन है
जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस में, राइट, आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको वहां डिसाइड करना है क्या रॉन्गफुल गेन हुआ या नहीं हुआ, क्या रॉन्गफुल लॉस हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपको, जब भी हम बात करते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन पुट किया गया एग्जामिनेशन में, ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, जब हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट, तब ऐसी सिचुएशन में यू अप्लाई योर माइंड, क्या ये चीज हुई या नहीं हुई, राइट। अब जो ये सेक्शन है डायरेक्टली, एक तो सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, और इसकी जो वर्डिंग यूज की गई है, रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स। बट क्या आपको जुडिशियल एग्जाम में यही ऑप्शन दिया जाएगा? आपको ऑप्शन दिया जाएगा wrongful gain is gained by, first point it is by unlawful means, second is illegal means, third is unethical means, और वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यार कुछ तो ऐसा था, बट वो वर्ड क्या था, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड हियर। कि 23 के अंडर wrongful gain और wrongful loss, दैट मीन्स ये पार्ट आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है कि wrongful gain is the gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। कि कुछ ऐसे बंदे ने किसने गेन अराइज किया अनलॉफुल तरीके से, जो कि उसको गेन हुआ, ही इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड फॉर इट, राइट। जैसे थेफ्ट किया किसी ने, एग्जांपल लेते हैं कि ए पर्सन ने कोई चीज को थेफ्ट किया, कमिट किया, उस केस में क्या उसका वो राइट था? नहीं था। तरीका क्या था उसका? अनलॉफुल था। और उसको जो चीज मिली, whether he is legally entitled, he is not legally entitled, तो this will be wrongful gain, right। दूसरा पार्ट क्या है? wrongful loss is the loss by unlawful means। तो यहां पे वर्ड क्या आ गया फिर से? unlawful। तो आपको इस वर्ड का ध्यान रखना है, बिकॉज यही कंफ्यूजन क्रिएट होगा प्रीलिम्स में। अगर इस वर्ड को चेंज कर दिया जाएगा अनलॉफुल, अनएथिकल, इलीगल, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यार 23 में ऐसा कुछ था, बट वो क्या था यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल। बट अभी आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, राइट। नेक्स्ट जो पार्ट है गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, तो आपको यहाँ पर एक बार एक गो थ्रू करना है, राइट। तो जो मेन क्रक्स था 23 का, कि आपको जब भी, जैसे थेफ्ट वाला पार्ट है, राइट, थेफ्ट के पार्ट में या किसी भी ऑफेंसेस के पार्ट में जब भी आप क्लब करते हैं कि क्या ये थेफ्ट था या नहीं था, तो यहाँ पे आपको रीजनिंग देनी होगी, क्या वो रॉन्गफुल लॉस हुआ या नहीं हुआ, क्या रॉन्गफुल गेन हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे ऑफेंसेस को आपको इन सेक्शन के साथ क्लब करना होगा मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में वर्ड क्या यूज हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको सेक्शन नंबर 23 थोड़ा आइडिया भी मिल गया होगा कि 22 में हमने पढ़ा मूवेबल, 23 में रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। अब जो 24 सेक्शन है दैट इज डिसऑनेस्टली। तो दोस्तों आप कुछ ये बता सकते हैं कि कैन यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ कि डिसऑनेस्ट वर्ड मेन जो कंटेंट है इसको आप किस सेक्शन के साथ लिंक करेंगे? कोई भी ऐसा आपको याद होगा अगर सेक्शन कि डिसऑनेस्ट का फोकस जो डाला जाता है किसी भी सेक्शन में, एक ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें वो 5 कंपोनेंट्स में से एक सबसे मेजर कंपोनेंट है डिसऑनेस्टी। क्या आप बता सकते हैं? और क्या एक मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन देता हूं आपको। घर में एक नौकर है, देयर इज अ सर्वेंट इन द हाउस, उसने सिर्फ अपने मालिक की वॉच जो है पिल्लो के नीचे हाइड कर दी कि मैं बाद में ले जाऊंगा, व्हेनेवर द ओनर विल नॉट बी अराउंड, मैं ये बाद में वॉच पिक करके ले जाऊंगा। उसने हल्की सी वॉच मूव की बेड के ऊपर ही, पिल्लो के नीचे हाइड कर दी, बाद में मैं ले जाऊंगा। क्या ये थेफ्ट काउंट होगा? क्या इसके एलिमेंट्स पूरे होंगे जो हम बात करते हैं रिगार्डिंग 378? एनी आइडिया? यस, इट विल बी थेफ्ट, बिकॉज 378 के अंडर, अब आप देखिए, जब व्हेनेवर वी स्टडी आईपीसी और एनी ऑफ द क्रिमिनल लॉ, तो दिमाग में ना, जैसे एविडेंस एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आईपीसी है, जब हम एक आम, मतलब मैं मान के चलो मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पुट करेगा ना कि यार एक किसी चीज ने उसको छुपा दिया पिल्लो के नीचे, क्या ये थेफ्ट होगा? ऑब्वियसली आई विल से कि थेफ्ट नहीं होगा। बट क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, व्हाट यू डू इज, कोई भी ऐसा अगर ऑफेंस है, पहले ऑफेंस के एलिमेंट्स को आप ब्रेक करें। अगर वो एलिमेंट्स ब्रेक करने के बाद हर चीज एप्लीकेबल हो जाएगी
कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी थी, डिसऑनर इंटेंशन भी थी, उसने मूव भी किया, राइट। अब इस केस में जब भी आप एसेंशियल्स अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीज देखनी है, आपको लॉजिकल नहीं चलना। लॉजिकल मतलब अपना सिंपल माइंड अप्लाई नहीं करना। लॉ के अकॉर्डिंगली एसेंशियल्स फुलफिल हो गए, ऑफेंस बन गया, राइट। अगर एसेंशियल्स कोई भी एक भी एलिमेंट मिसिंग है किसी भी ऑफेंस में, अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है, आई एम रिपीटिंग, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। और इसी के बेसिस पे ये आई बेट कि हर स्टेट के अंडर ऑफेंस का सेक्शन कौन सा है, पनिशमेंट सेक्शन कौन सा है, ऑफेंस के मेन एलिमेंट्स क्या कवर्ड है, इनमें से तकरीबन 70% क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं इंक्लूडिंग द इलस्ट्रेशन पार्ट। तो आपको जब भी जो कंफ्यूजिंग पार्ट जिसको बोलते हैं ना स्टूडेंट, कि यहां से सर थोड़ा क्वेश्चन मोल्ड कर दिया या कुछ ऐसा मोल्ड किया हुआ था, आपको सिर्फ ये करना है, आपको बेसिक एसेंशियल्स उठाने हैं, राइट। अगर तो वो चीजें फिक्स हो गई देन इट विल बी ऑफेंस। अगर उसमें से कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग है इट विल नॉट बी एन ऑफेंस, जो भी आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पुट किया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 24, whoever। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि आपको जब मैं आईपीसी के बारे में बताऊंगा तो आपको मैं पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा जिससे आप और अच्छा, जितना भी आपने मान के चलिए कि कई स्टूडेंट्स को अच्छे से आईपीसी आता भी है, राइट। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं पढ़ने का जिससे आप और इंप्रूव करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में लॉ के अंडर। अब यहाँ पे मैं सेक्शन 24 को पकड़ता हूं, डिसऑनेस्ट। पहली बात, सेक्शन नंबर 24 बात क्या कर रहा है, इट इज रिगार्डिंग, जस्ट अ सेकेंड। तो ट्राई कि आप जो भी सेक्शन रीड करें आप उसको चार्ट फॉर्मेशन में बना लें। whoever, सबसे पहला क्या आ गया, whoever मतलब कोई भी हो सकता है, राइट। डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, तो वो कॉज क्या कर रहा है, द एलिमेंट्स आर wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, राइट। तो मैंने यहां पे क्या किया, डेफिनेशन को ब्रेक किया। अब ये चार्ट फॉर्मेशन से ये होगा, मेरे को दिमाग में पिक्चर स्ट्राइक करेगी जब भी मेरे को कोई भी डिसऑनेस्ट की बात करेगा तो मेरे को याद आएगा कि यार चार्ट था, उसमें कुछ तो ऐसा था कि मैंने 3 लेवल तक, 3 फ्लोर तक चीजें कवर की थी, whoever, causing, wrongful gain और। तो पिक्चर फॉर्मेशन दिमाग में बैठना एक इजी तरीका है, रादर देन बार बार जब भी आप कंटेंट रीड करेंगे ना तो इट विल बी बिट बोरिंग, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो आप थोड़ा उसमें आप एक चीज कीजिए, बेयर एक्ट में यू कैन यूज द स्टिकी नोट्स, वहां पे आप फ्लैग्स लगा के ड्रॉ द चार्ट्स फॉर द सेक्शंस, तो आपको याद करना बहुत इजी रहेगा। लेट इट बी एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, राइट। तो जब आप चार्ट फॉर्मेशन से पढ़ेंगे, अगर आप ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं लॉ, आपको एक अच्छा तरीका मिलेगा पढ़ने का, फाइन। सेक्शन नंबर 24 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने मेंस के पार्ट में, अब कई स्टूडेंट्स मेरे को बहुत बार क्वेरीज आती हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंडर मेरे को पर्सनल मैसेजेस बच्चे करते हैं कि सर मेंस के रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन फॉर मेंस। अब जैसे मैंने यहाँ पे कवर किया सेक्शन नंबर 24, तो मैं थेफ्ट का एग्जांपल लेता हूं, राइट। सबसे पहली बात, आपने जब भी अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ट्राई कि आप अगर चार्ट फॉर्मेशन से प्रेजेंटेशन लेके आएंगे आपका पेपर थोड़ा प्रेजेंटफुल लगेगा, राइट। तो आपने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स कवर कर दिए, सभी एलिमेंट्स के बारे में यू राइट अ सिंगल लाइन कि ये एलिमेंट्स है क्या, देन यू लिंक दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स विद द क्वेश्चन इन हैंड, कि अब ये जो प्रॉपर्टी है एज पर द गिवन स्टेटमेंट इन हैंड, कि ये भी जस्टिफाइड है, मूवेबल भी है, उसकी इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट थी। तो आप क्वेश्चन का सिंगल एलिमेंट उसको आप कंपेयर कीजिए विद द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अल्टीमेटली एंड जो स्टेज है दैट इज कंक्लूजन, कि आपको पहले सारे सेक्शन का पार्ट देना है कि हमारे सेक्शन ने ये बोला एज पर द ऑफेंसेस कंसर्न, जो क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्स हैं उसको सिंगल को लिंक किया हर चीज के साथ, जस्टिफाई कर दिया, देन यू कैन कंक्लूड कि ठीक है जी मेरे अकॉर्डिंगली ये ऑफेंस ऐसे बनता है।
राइट। तो ये एक तरीका है आंसर लिखने का, एंड आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोस रिगार्डिंग इट। और स्पेसिफिकली आपको मैं कोई एग्जांपल के तौर पे आई विल बी राइटिंग आंसर फॉर यू एंड आई विल पोस्ट अ वीडियो रिगार्डिंग इट, ताकि आपको एक और आइडिया मिले कि मैं किस वे से बता रहा हूँ आपको ये आंसर राइटिंग का टेक्निक। So section 24 is very very important from prelims and mains also. Moving on to the next section of IPC, that is fraudulently. तो fraudulently में जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जो इसमें कंटेंट कवर्ड है, a person is said to do a thing fraudulently if he does that act, if he does that thing with intent to defraud, right? तो आपको ये, आप अच्छे से वर्ड को मार्क कर लीजिए, राइट? इवन द सेक्शन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज रीजन टू बिलीव. सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट. देन सेक्शन नंबर 27, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट. तो यहां पे इन्होंने जो क्लैरिफाई किया कि अगर चाहे प्रॉपर्टी आपके वाइफ के पास, क्लर्क के पास या सर्वेंट के पास है, इसको यहां पे डीम्ड पोजेशन माना जाएगा. किसका? जिस बंदे की वो प्रॉपर्टी है. गाइस, कैन यू जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन दैट देयर इज अ इलस्ट्रेशन इन द ऑफेंस पार्ट. ऑफेंसेस के अंदर एक इलस्ट्रेशन दी गई है जिसको सेक्शन 27 के साथ रीड करना चाहिए. जो ऑफेंसेस के अंदर एक ऐसी इलस्ट्रेशन है जिसको सेक्शन नंबर 27 के साथ रीड करना चाहिए. कैन यू प्लीज आंसर दैट? जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. यस 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 यस. जस्ट आई वांटेड टू हैव एन आइडिया कि आप लोगों ने काफी हद तक अच्छे से पढ़ा है. इट इज जस्ट कि आपको एक पावर डोज चाहिए और यू कैन जस्ट क्लिक द एग्जाम, राइट? वेरी गुड आदित्य, प्रीति, रोहन, रुचिका, देन प्राप्ति एंड नेहा. Very good. Right. I'm very happy to know this, that you are aware about these particular basic facts about the subject. Right. So definitely I'll be trying my best to help you out for the other provisions of this act also, and no doubt for other subjects also. Guys, I'm a bit sorry for this thing because of the tight schedule every day. मैं जितना टाइम मतलब निकाल पाता हूँ, आई एम गिविंग माय 100% एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जैसे जैसे एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा, आई जस्ट पोस्टिंग मोर वीडियोस ताकि आप जल्द से जल्द ऑफिसर बन पाए. राइट. मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 28, इट इज काउंटरफिट. राइट. काउंटरफिट और काउंटरफिट. तो आपको सेक्शन नंबर यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, ये एक ऐसा सेक्शन है जो नॉर्मली एग्जामिनेशन में पुट किया जा सकता है रिगार्डिंग द काउंटरफिट पार्ट. राइट. एंड गाइस, कैन यू जस्ट लेट मी नो कि काउंटरफेट को आप और किस प्रोविजन के साथ पढ़ सकते हैं? जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. काउंटरफेट प्रोविजंस कैन बी रेड अलोंग विद सेक्शन, ताकि जिनको इंटरलिंकिंग नहीं पता कि ऑफेंसेस को किस वे से पढ़ते हैं, आई विल बी जस्ट क्लियरिंग दिस पार्ट कि आपको साथ के साथ बेयर एक्ट पे ध्यान रखना होता है. हाँ गाइस, यू कैन मार्क इट दैट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, काउंटरफेट सेक्शन नंबर 28, सेक्शन 230, 231, 489, इसको आप ध्यान से देखिए. राइट. डोंट गेट कंफ्यूज. ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ काउंटरफेट पढ़ा हो सेक्शन 28 और आपको प्रोविजन कोई 489 ए से या 230 या 231 की पुट की गई है एज अ हेडिंग. तो इस चीज को ध्यान में रखिए. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट का सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं याद करने का आपको तरीका बताता हूं कि जब भी हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, या तो आपको सेक्शन नंबर पुट किया जाएगा एग्जामिनेशन में, पहली बात. दूसरी बात यह हो सकती है विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंट, अब जैसे एरिया का क्या होता है, इट इज एमएलए. राइट. तो आप इसको याद कर सकते हैं एमएलएफ. जैसे एमआरएफ है वैसे ही एमएलएफ के डॉक्यूमेंट्स में जो कंपोनेंट्स हैं, इट इज एम इज फॉर मार्क्स, राइट, एल इज फॉर लेटर्स, एफ इज फॉर फिगर्स. तो आप एमएलए की तरह इसको याद कर सकते हैं, या तो एमएलएफ या हम बोलते हैं कंपनी कौन सी, एमआरएफ. तो आप याद कर सकते हैं एज एमएलएफ. राइट. मार्क्स, लेटर्स एंड फिगर्स. इसका सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है एंड इसके जो कंपोनेंट है कि इसमें क्या क्या चीज कवर्ड है,
और इसकी फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. A writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is a document. A check upon a banker is a document. A power of attorney is a document. Right? तो कई बार डायरेक्टली इसको डैश लिखा जाता है. A power of attorney is a dash. तो वहां पे ऑप्शन दिए होंगे. Is a document, is not a document. Right? It is just a legal note. ठीक है, कोई भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं. तो आपको इलस्ट्रेशन मार्क करनी है यहाँ पे. देन इफ ये एक ऐसा सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स वाला, पहले आपको मैंने बताया कि इसको याद कैसे करना है, दैट इज एमएलएफ. ठीक. दूसरा इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन का भी ध्यान रखना है इस सेक्शन का. देन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क कीजिए, सेक्शन नंबर 29 कैपिटल ए. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज कवर्ड अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ आईपीसी. तो यहां पे आप इस चीज को मार्क कीजिए 29 कैपिटल ए. राइट. देन सेक्शन नंबर 30. Here also I'll give you a formula to learn this part. Valuable security. और यहां पे जो वर्ड यूज किए गए हैं ना, लीगल राइट इज क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड. तो यहां पे इन जो पार्ट्स को आपको याद रखना है, दैट इज द फॉर्मूला इज, आप ये चीज नोट कर लीजिए, आपको बहुत इजी रहेगा कि जब भी हम सेक्शन नंबर 30 पढ़ते हैं, दैट वैल्यूएबल सिक्योरिटीज इंक्लूड. तो यहां पे आप दैट इज क्रेडिटर, तो आप बेयर पे लिख सकते हैं क्रेडिटर स्टैंड्स फॉर, सी इज फॉर क्रिएटेड, राइट, रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड. ठीक है, आप इस वजह से इसको याद कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश्ड एंड रिलीज्ड. तो फ्रेंड्स इसको आप एज CRETER, ठीक है, तो बहुत इजी तरीका है, CRETER, दैट इज क्रेडिटर. तो आप ये बेयर एक्ट पे इसको लिख सकते हैं. देन सेक्शन नंबर 31, द वर्ड्स विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट. टेस्टामेंट्री वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सो आपको ये चीज मार्क करनी है, टेस्टामेंट्री. ठीक. और सेक्शन नंबर भी सेक्शन नंबर 31. Then section number 32, words referring to acts include illegal omissions. तो यहां पे आपको सेक्शन नंबर एंड व्हाट इट इंक्लूड्स, एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस. मतलब अगर आप कोई चीज इसके रिगार्डिंग, मैंने कुछ बेसिक जो वीडियोस अपलोड की थी इंडियन पिनल कोड की, वहां पे एक्ट्स और ओमिशंस में डिफरेंस क्रिएट किया था. एक्ट मतलब जब आपने कोई ऑफेंस किया, और कुछ ऐसी ओमिशंस भी हैं, अगर आपने वो काम नहीं किया देन आल्सो यू आर लायबल. जैसे कि अगर कोई सेफगार्ड, जो बीच एरिया है या कोई सी का आसपास एरिया है, देयर आर गार्ड्स टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल. ठीक है, अब कोई एक गार्ड देख रहा है कि बंदा डूब रहा है और उसको वो नहीं बचा रहा, विल ही बी लायबल? यस, ही विल बी लायबल, बिकॉज दिस इज एन इलीगल ओमिशन. और इसको अगर आप इंटरलिंकिंग करते हैं, आपको सेक्शन 32 के अंडर जब भी आप इलीगल वर्ड रीड करते हैं, इट इज अंडर सेक्शन नंबर 43. तो आप जब भी ये सेक्शन पढ़ें, इसके साथ सेक्शन नंबर 43 को जरूर पढ़ें आप. राइट. देन एक्ट एंड ओमिशन, सेक्शन नंबर 33, it includes series of acts as a single act. The word omission denotes as a word, as well as series of omissions as a single omission. Now moving on to very very important section, जिसमें से आपको एग्जामिनेशन में एटलीस्ट जो हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब इनमें तो ये जो मैंने नोट किया है, दिस इज अ वेरी रेपिटेटिव क्वेश्चन कि सेक्शन नंबर 34, section number 35 of IPC, this is the favorite part of the examiners. तो आपको किसी भी हाल में सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 35 और प्रीलिम्स की जब मैं बात कर रहा हूं, आपको एक बार इनका जो कंटेंट है सेक्शन 34 35 का अच्छे से, क्योंकि प्रीलिम्स का भी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पुट किए जाएंगे एग्जामिनेशन में, आपको एक बार देखना है कि प्रीलिम्स में भी कुछ ऐसे पार्ट है जिससे आपको 34 35 हेल्प करेगा अगर आप उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा जो पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं, जैसे कि वर्ड है फदरेंस, वर्ड को मार्क करना है फदरेंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 34 एंड इवन सेक्शन नंबर 35, राइट. और यहाँ पे आपको मैं कुछ इवन केस लॉज बताऊंगा जो आपको वो गो थ्रू करने हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो आपको इवन ये केस लॉज भी गो थ्रू करने हैं, राइट. फर्स्ट वन इज बीके घोष. तो इसको आप लिख सकते हैं बेयर एक्ट में, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज. इवन इस केस लॉ को पोस्ट मास्टर मर्डर केस भी कहा जाता है, राइट. द सेकेंड वन इज दुख मोचन, DUKHMOCHAN, दुख मोचन पांडे, राइट, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इन केस लॉज को आपको एक बार गो थ्रू करना है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट 34 एंड 35, क्योंकि आपको डिफरेंस भी क्रिएट करना है 34 और 35 में. आपको एक बार मैं आइडिया देता हूं. इवन एक और केस लॉ दैट इज कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. अगर आप इन केस लॉज को गो थ्रू करेंगे तो आपको काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. एंड सेक्शन 34 को यह भी कहा जाता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी. तो इनको आई वुड सजेस्ट कि एक बार इनका आपका केस लॉ गो थ्रू कीजिए, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 34, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर. तो अभी ये एक ऐसा सेक्शन है, सेक्शन नंबर वैसे 34 35 एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर सेपरेट अच्छे से 1-1.5 घंटे की क्लास ली जा सकती है. और आई विल ट्राई कि जल्द ही कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट किए जाएं ताकि आपको उन सेक्शन में और क्लैरिटी मिले. टाइम कंस्ट्रेंट के कारण अभी तक मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको एक बार इनको इस वे से गो थ्रू करना है, राइट. तो सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 35, इवन सेक्शन नंबर 36 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी इलस्ट्रेशंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में दिखेंगी जो जुडिशियल एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जैसे कि सेक्शन नंबर 37, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, राइट. अब जो ये सेक्शन नंबर 37 है, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, ठीक है. यहां पे जो वर्ड यूज किए गए, इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट्स. मतलब अगर कोई भी ऐसा पर्सन है वो इंटेंशनली कोऑपरेट करता है फॉर डूइंग ऑफ एनी वन ऑफ दोज एक्ट्स ईदर सिंगली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन कमिट्स दैट ऑफेंस. दोस्तों इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन ए, इलस्ट्रेशन बी, इलस्ट्रेशन सी, इवन आई गेस दैट इलस्ट्रेशन बी और सी में से डायरेक्टली पंजाब में क्वेश्चन पुट किया गया था लास्ट टाइम. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन और आपको इसके इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं. किन केसेस में किस वे से ऑफेंस बना, सिर्फ रीड नहीं करना, मार्क नहीं करना, आपको अच्छे से इसको पढ़ के समझना है. देन सेक्शन नंबर 38, इस पे आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू जस्ट मार्क द सेक्शन नंबर, राइट. इलस्ट्रेशन इसका इंपॉर्टेंट है. देन वॉलंटरली, ठीक है. तो इस केस में जो 3 एस्पेक्ट्स हैं इस सेक्शन के अंडर, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, इसको मार्क करना है आपके. इंटेंडेड टू कॉजेज, means by which the time of implying those means he knew, that is the knowledge, or had reason to believe. तो voluntarily वाले पार्ट में आपको ये एक बार गो थ्रू करना है सेक्शन नंबर 39, ठीक है. इवन ये वो सेक्शन है जैसे हमने मूवेबल प्रॉपर्टी और सेक्शन नंबर 24 25 सारे गो थ्रू किए कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. ये भी एक वैसा सेक्शन है जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देन सेक्शन नंबर 40 इज रिगार्डिंग ऑफेंस. अब कुछ सेक्शंस है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सेक्शन नंबर्स मार्क करने हैं. स्पेशल लॉ सेक्शन 41, स्पेशल लॉ में एन एग्जांपल, इट कुड बी रिगार्डिंग नारकोटिक्स, इट इज अ स्पेशल लॉ. लोकल लॉ में एग्जांपल, इट कुड बी अ रेंट एक्ट, राइट, पर्टेनिंग टू अ सर्टेन एरिया. सेक्शन नंबर 43 44, इनका हेडिंग फॉर प्रीलिम्स और इनका जो कंटेंट है दैट इज फॉर मेंस. आपको दोनों सेक्शंस में एक चीज गो थ्रू करनी है, दैट
इलीगल के अंडर क्या कवर्ड है, विच इज एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो तीन कंपोनेंट्स आपको मार्क करने हैं। नंबर 1 ऑफेंस, नंबर 2 प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नंबर 3 ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। अब जो सेक्शन नंबर 44 है, द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली, तो यहां पे फिर से वर्ड आया इलीगली, कॉज टू एनी पर्सन। तो यहां पे जो कंपोनेंट्स हैं कि नॉर्मली जो आईपीसी के अंडर ऐसी इंजरीज क्या है, इट कुड बी टू बॉडी फर्स्ट पॉइंट, टू माइंड सेकंड पॉइंट, टू रेपुटेशन थर्ड पॉइंट, देन टू द प्रॉपर्टी, राइट। तो आपको ये चारों पॉइंट यहां पे मार्क करने हैं, टू बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि ये इंजरी कौन से सेक्शन के अंडर कवर्ड है या उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। देन जनरल डेफिनेशंस, लाइफ, डेथ, एनिमल, वेसल, ईयर और मंथ। इन केसेस में आपको सेक्शन नंबर ध्यान में रखना है एंड स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 49। यहां पे एक चीज मार्क कीजिए, ईयर मंथ। तो मैंने क्या बोला, ईयर और मंथ, ठीक है। यहां पे वर्डिंग क्या है, इज टू बी अंडरस्टूड दैट द ईयर और द मंथ इज टू बी रेकन्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। ब्रिटिश कैलेंडर को आप मार्क कीजिए, दिस कुड बी आस्क्ड कि ईयर और मंथ जो आईपीसी के अंडर ये सब कुछ है, इट इज एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर। और दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है लॉ के अंडर जहां पे वर्ड यूज किया गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कैन यू नेम दैट सब्जेक्ट? वहां पे लिखा जाता है कि इट इज एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो वर्ड यूज किया गया है ग्रेगोरियन। देन सेक्शन 50 रिगार्डिंग सेक्शन ओथ, आपको मतलब जो ये चीज है ना 50, 51, 52, 52 कैपिटल ए, ठीक है, इनके आपको सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं, ठीक है। और याद करने का तरीका ये है 50 से लेके 51 कैपिटल, जो 52 कैपिटल ए है, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन ओथ, गुड फेथ, हार्बर, SOGH, इस वजह से आप याद कीजिए, ठीक है। सेक्शन ओथ, गुड फेथ, हार्बर। और इसमें जो ओथ वाला पार्ट है, इसमें आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। एंड जो गुड फेथ है, नथिंग इज सेड टू बी इन गुड फेथ, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको यहां पे मार्क करने हैं, ड्यू केयर और अटेंशन, ठीक है। तो आपको ये ऐसा हो सकता है कि पूरी डेफिनेशन लिखी हो और ये पार्ट डैश छोड़ा गया हो कि इट इज विद ड्यू केयर और ड्यू कॉशन और ड्यू डिलीजेंस। तो ये ध्यान में रखना पॉइंट को, गुड फेथ के अंडर डेफिनेशन जो कवर्ड है। मूविंग ऑन टू हार्बर पार्ट, सेक्शन 52 कैपिटल है। इसमें अगर आप इस चीज को याद रखते हैं, हार्बर वाले पॉइंट को, ठीक है, तो आपको तो आपको एक सेक्शन नंबर याद रखना है, ठीक है। एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं सिर्फ। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 3, इट इज रिगार्डिंग द पनिशमेंट्स पार्ट ऑफ पनिशमेंट्स। इफ यू लाइक द वीडियो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या, जो आपने आज तक पढ़ा हुआ था, आपको कुछ एडिशनल हेल्प मिली रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ आईपीसी, so that the next video will be a more researched video and I'll be working on these sections कि आपको किस किस वे से क्या क्या चीजें मार्क करानी है फॉर द इंडियन पेनल कोड। एटलीस्ट एक बार ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द मोर सब्जेक्ट्स एंड इवन इट कुड बी अ चांस कि जल्द ही मैं आपको छोटे एक्ट्स भी स्टार्ट करवा दूंगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिन के वो एक्ट्स होंगे तो आप जल्दी से सेक्शन नंबर्स और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, यू विल बी गेटिंग न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। For this part, I have already covered till section number 52 capital A, and we will be starting from section number 53A. And side by side, you can just carry your bare act so that आप important part उसमें mark कर पाए, जिसमें आपको section oath, good faith and harbor आपने याद किया था। Hope आप सबने ये chart note कर लिया। We will be discussing this part again, right? अब जो SOGH part था, that was from section number, that is 50, 51, 52, 52 कैपिटल ए, राइट। अभी जो पार्ट है,
आई विल बी स्टार्टिंग लाइक, यहां पे याद करने का तरीका कि है AVYSOGH, अवी सोग. So A is for animal, that is section number 47, then 48, then 49. तो बाकी तो हमने ऑलरेडी 4 ये कवर किए थे जो लास्ट वीडियो में, राइट. एंड नाउ स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 53, दैट इज पनिशमेंट्स. तो दोस्तों यहां पे जो पर्टिकुलर वीडियोस है, इनका जो मेन मोटिव है, पहले इट इज जस्ट प्रीलिम्स, राइट. बट आपको मैं साथ के साथ सेक्शन नंबर्स बताऊंगा कि आपको कहां पे कौन सी चीज मार्क करनी है, ताकि आप उन चीजों को अटेम्प्ट कर पाए एग्जामिनेशन में, राइट. अब सेक्शन नंबर 53, यहां पे जो पनिशमेंट्स कवर्ड है, तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पनिशमेंट्स दैट इज कवर्ड अंडर आईपीसी. तो सेक्शन 53 के अंडर इट इज 5 टाइप्स, राइट. तो आप इसको नोट कर सकते हैं इन योर बेयर एक्ट. देन सेक्शन नंबर 53 कैपिटल ए और सेक्शन नंबर 54, दोनों में ध्यान रखना है कि 53 कैपिटल ए इट इज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, एंड जो 54 है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, इनके रिगार्डिंग सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट है, राइट. और जो 54 के अंडर दे हैव यूज्ड द वर्ड इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट. तो आप यहां पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, दैट इज इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसको मार्क करके आप यहां पे लिख सकते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जामिनेशन, सेक्शन नंबर प्लस द पार्ट दैट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहां पे. देन सेक्शन नंबर 55 कैपिटल ए, ऑलरेडी ऊपर मैंने बताया कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाले पार्ट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इसको नोट करेंगे 55 कैपिटल ए को. फ्रेंड्स यहां पे एक और चीज है, 2013 एक्ट या फिर आईपीसी के अंडर जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स लाइक जो सेक्शंस है कैपिटल ए या कैपिटल बी सी डी, जैसे 376 में, आपको इनकी हेडिंग्स पता होनी चाहिए. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मेजरली यहां पे मैंने 2013 एक्ट बोला बिकॉज हर स्टेट में इस पर्टिकुलर प्रोविजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. तो आपको इन प्रोविजंस को लाइक 326, इन सेक्शंस को अच्छे से मार्क करना है. डायरेक्टली ये वो प्रोविजंस हैं जिनमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किया जाता है एज हेडिंग, राइट. तो उसके बाद जैसे यहां पे कैपिटल ए की प्रोविजन है, इवन फॉर अ सेफर साइड, आपको जो इनमें अमेंडमेंट्स का ईयर है, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट, राइट. अब सेक्शन नंबर 57 फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अब जो कुछ सेक्शंस हैं दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तकरीबन 75 तक, राइट. तो यहां पे आपको मैं साथ के साथ सेक्शन नंबर बताता चला जाऊंगा कि आपको कहां पे क्या चीजें मार्क करनी है फॉर द एग्जामिनेशन, राइट. अब सेक्शन नंबर 57 के अंडर फॉर कंप्यूटिंग, राइट, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. This is very important part. तो आपको यहां पे years का this period has to be marked in the Bail Act. इसके बाद जो सेक्शन नंबर 58 that is amended, then 59, आप इसको सिर्फ एक बार रिपील्ड है, आप सिर्फ सेक्शन नंबर का ध्यान रख सकते हैं, राइट. नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सेक्शन नंबर 60, इसकी हेडिंग दैट इज sentence may be wholly or partly rigorous or simple. इसका सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है. और यहां पे आपको ऑप्शंस इट कुड बी कि एग्जामिनेशन में दिया हो होली या पार्टली, सी ऑप्शन इज बोथ ऑफ देम. तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन की हेडिंग में लैंग्वेज क्या यूज की गई, दैट इज होली और पार्टली, रिगरस और सिंपल. दोनों पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब कुछ सेक्शंस हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दर जो एक्सेप्शंस हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. देन सेक्शन नंबर 63, अमाउंट ऑफ फाइन. इसमें फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज अनलिमिटेड, इसको आप अच्छे से राउंड कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली यहां पे क्वेश्चन पुट किया जाता है that the amount of fine under sections of IPC
तो यहां पे या तो सेक्शन नंबर रेफर किया जाएगा, तो वहां पे जो ऑप्शन है अनलिमिटेड, राइट, और लिमिटेड, एक्सेसिव, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है सेक्शन में टर्म क्या यूज किया गया, दैट इज अनलिमिटेड। तो यहां पे अगर कोई ऑल्टरनेटिव टर्म दिया जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट विल बी कट आउट फ्रॉम द ऑप्शंस। तो कईयों ने जो प्रीवियस क्लास में एक क्वेरी थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, कि सर जो एमसीक्यूज हैं उनमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है। अब जैसे यहां पे टर्म है इट इज अनलिमिटेड, तो मैंने बताया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और यहां पे अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे नॉट लिमिटेड लिखा हो, राइट, तो आपको जब आप ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बेयर एक्ट पे मार्क करेंगे आपका काफी हद तक यू विल बी क्लियर अबाउट द टर्म्स। और ऐसी जो कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द टर्म्स इन द बेयर एक्ट, प्लस जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो आपको मैं सेक्शन वाइज बता रहा हूं, ऑटोमेटिकली आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहीं पे। कि आपको यहां पे अगर ये वर्ड है दे कुड यूज द सिनोनिम, और वहां पे आपको एग्जामिनेशन में ये गलतियां नहीं करनी, राइट। तो आप इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को राउंड टिक कर सकते हैं, या इट्स बेटर टू यूज अ कलर्ड पेन ताकि वहां पे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो एग्जामिनेशन में। देन सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, यहां पे जो 63 था इट वाज रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ फाइन, और अब बात कर रहे हैं सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब जो पहले फाइन इंपोज किया गया अगर वो फाइन पे नहीं किया जाता, इन दैट केस फर्दर क्या होगा, इंप्रिजनमेंट, राइट। तो इस सेक्शन नंबर को आप मार्क कर सकते हैं। देन इसके बाद जो सेक्शन नंबर 65 है यहां पे एक टर्म यूज किया गया है, पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट। तो जितना भी टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट है उसमें 1/4 उसका टर्म शैल नॉट एक्सीड। तो यहां पे आपको ये जो पर्टिकुलर वर्ड है शैल, दैट मींस दिस इज मैंडेटरी, शैल नॉट प्रोसीड 1/4। और आपको यहां पे ऑप्शन होंगी शैल नॉट प्रोसीड 1/3, 1/4, 1/5 और हाफ, राइट, इन द एग्जामिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है यहां पे जो एग्जैक्ट वर्डिंग है, जो यहां पे पार्ट है इट इज 1/4। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर प्रोविजन में यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सेक्शन नंबर 66, इसको आप एक बार मार्क कर सकते हैं, इनके ऊपर आप आर लिख सकते हैं, दैट मींस इट इज जस्ट टू बी रेड, ठीक है। सेक्शन नंबर 67, इसको याद करने का तरीका यह है आप एक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द बेयर एक्ट, दैट इज जो यहां पे टर्म यूज किए गए, इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। तो यहां पे जो पर्टिकुलर प्रोविजंस दी गई हैं दैट इज फाइन अगर इसकी अमाउंट 0 to 50, इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग, ठीक, इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग दैट इज 2 months। अगर अमाउंट है टिल 100, दैट इज यहां पे स्टार्ट होगा 51 to 100, 4 months। देन ग्रेटर देन 100, हियर इट इज 6 months। तो आप इस चार्ट को यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। काफी स्टेट्स में ये पर्टिकुलर प्रोविजन डायरेक्टली पुट की जाती है कि अगर फाइन, दे कोट एन इलस्ट्रेशन कि यहां पे फाइन दिया हुआ है 65, तो उस केस में नॉट एक्सीडिंग क्या होगा, 4 months। तो आपको बस ये चार्ट ड्रॉ करना है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द प्रोविजंस। देन सेक्शन नंबर 68, इंप्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, राइट। जो हमने पहले बात की कि अगर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन है, अगर फाइन पे कर देते हैं द इंप्रिजनमेंट विल टर्मिनेट। तो आपको यहां पे हल्का सा सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी दैट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे भी आपको जो जैसे 67 में हमने कवर किया चार्ट, राइट, तो यहां पे भी आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के रिगार्डिंग जो सेक्शन नंबर 73 है, ठीक, आप यहां पे एक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इंप्रिजनमेंट 6 months, then solitary confinement is for 1 month, greater than 6 months to 1 year,
then it is for 2 months, and more than 1 year solitary confinement is for 3 months. तो फ्रेंड्स आप ये चार्ट नोट कर सकते हैं, और जो 74 के अंदर है यहां पे आपको जो पीरियड है, राइट, 14 डेज एंड 14 डेज इंटरवल, और बाद में अब imprisonment awarded shall exceed 3 months, in that case 7 days और 7 days का इंटरवल. तो आपको 3 मंथ से कम और 3 मंथ के ज्यादा के पीरियड का आपको ध्यान रखना है. यहां पे आप ये पीरियड मार्क कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. अब फ्रेंड्स कुछ ऐसा पार्ट है 76 के बाद का जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पार्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को अच्छे से बेरेक्ट पे मार्क कर सकते हैं कि आपको किस सेक्शन में किन चीजों का ध्यान रखना है फॉर बोथ द पार्ट, राइट. इवन आपको मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि आपको जो प्रोविजंस हैं इनमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें से इलस्ट्रेशंस डायरेक्टली कोट की जाती है एग्जामिनेशन में. आपको उन चीजों का ध्यान रखना है, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक तरह के लॉटरी क्वेश्चन हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली बिट टेक्निकल. बट अगर आप सेक्शंस को एक बार गो थ्रू करते हैं या आपको ये पता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है और इसकी मिक्सिंग क्या है बाकी चीजों के साथ, तब आप इजिली इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, राइट. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस. अब सेक्शन नंबर 76, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ. तो 76 के अंडर द वर्ड यूज इज बाउंड बाय लॉ, और यहां पे आप ध्यान रखना कि 79 के साथ इसको कंफ्यूज ना करना. वहां पे यूज किया है वर्ड पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, राइट. यहां पे ड्यूटी बाउंड था और यहां पे क्या था, ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ, उसको पावर मिली टू डू सच एंड सच एक्ट, राइट. आप इन दोनों टर्म्स में डायरेक्टली सेक्शन नंबर कोट किया जाता है एग्जामिनेशन में, तब यहां पे आप इस चीज का वर्ड को अच्छे से मार्क कर लीजिए. देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन द एग्जामिनेशन, राइट. और 76 के अंडर यहां पे जो इसकी इलस्ट्रेशन है, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर, ये दोनों इलस्ट्रेशंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां पे इन्होंने इलस्ट्रेशन देखे, जैसे एंड में लिखा है नो ऑफेंस देन नो ऑफेंस, जो बी इलस्ट्रेशन में भी. तो यहां पे पूरी की पूरी एज इट इज इलस्ट्रेशन रिपीट की जाती है एग्जामिनेशन में. आप इनको मार्क कर सकते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. कोई भी जुडिशियल ऑफिसर व्हेनेवर ही इज एक्टिंग जुडिशियली, उन केसेस में जब वो ऑर्डर पास करते हैं इन गुड फेथ, राइट, तो हाउ दे आर सेफगार्डेड, इट इज थ्रू सेक्शन नंबर 77, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. तो यहां पे good faith होना बहुत जरूरी है, and he believes it to be given to him by law. सेक्शन नंबर 77 का हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. एंड जो सेक्शन नंबर 78 है, यहां पे आप इसकी लिख सकते हैं साइड पे, that this section pertains to hangman defense. Hangman defense. Now coming to section number 79. यहां पे पहले आपको मैंने बताया कि 76 और 79 में किस चीज का ध्यान रखना है. One is bound, क्योंकि यहां पे B पहले आएगा, this is bound, and 79 में justified. तो ये कंफ्यूजन अब कभी नहीं होगी कि अल्फाबेटिकली वाइज कौन सा सेक्शन पहले है और कौन सा बाद में है. देन सेक्शन नंबर 80, इसका भी हेडिंग यहां पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज एक्सीडेंट, अदर वन इज मिसफॉर्च्यून. वन इज एक्सीडेंट, अदर वन इज मिसफॉर्च्यून. इसको भी एक्सेप्शंस में कवर किया गया है, राइट. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in the doing of a lawful act in lawful manner by lawful means. तो इस सेक्शन की वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, that which section pertains to
एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। तो दोस्तों यहां पे जो एक्सीडेंट है, जो वर्ड यूज किया जाता है, इट इज बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। और जो वर्ड यूज किया गया मिसफॉर्च्यून, इट कुड बी एनी कैलामिटी, मतलब इट कुड बी बाय, जैसा बोलते हैं कि भगवान ने किया है, राइट? तो उस केस में इट इज बाय गॉड एंड एक्सीडेंट इज बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो आपको सेक्शन नंबर ध्यान में रखना है, दैट इज सेक्शन नंबर 80। देन सेक्शन नंबर जैसे हमने मार्क किया 78 के अंडर, दैट इट परटेन्स टू हैंगमैन डिफेंस, राइट? नाउ सेक्शन नंबर 81, इट डील्स विद रूल ऑफ नेसेसिटी। इट डील्स विद रूल ऑफ नेसेसिटी। तो आप इस चीज को बेयर एक्ट पे मार्क कर सकते हैं, दैट सेक्शन 81। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दैट इज डडली एंड स्टीफन्स, राइट? इट इज रिगार्डिंग सेलर। उसके रिगार्डिंग केस लॉ है दैट इवन इफ देयर इज सम नेसेसिटी, यू कैनॉट मूव फॉर अ होमिसाइड। ठीक है, कि आप सिर्फ ये बोल के कि जी नेसेसिटी थी, हमारे पास खाना खाने को नहीं था, इस वजह से किसी को होमिसाइड, दैट इज किलिंग, ठीक है, किसी को मार देना, इट इज नॉट जस्टिफाइड हियर। नेक्स्ट जो प्राइवेट डिफेंसेस वाला पार्ट है, उसको चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है, उसको अच्छे से डिस्कशन की जाएगी वीडियोस में, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम है या मेंस एग्जाम है। फाइन। तो यहां पे आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं कि आपको सेक्शन नंबर 82 एंड 83, यहां पे जो एज लिमिट है, दैट इज एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, मतलब ये पनिशेबल नहीं है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर सेक्शन 82, इसको ये भी बोला जाता है दैट इट इज डॉली इन कैपेक्स, नॉट कैपेबल, डॉली इन कैपेक्स। और यहां पे जो एज है दैट इज 7 years ऑफ एज, मतलब अगर कोई कोई चाइल्ड ऑफेंस करता है और उसकी एज 7 years से कम है, ही विल नॉट बी पनिशेबल एज पर प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। तो यहां पे लीवरेज दी गई है कि एक बच्चे का इतना माइंड नहीं है कि वो उन चीजों को समझ पाए। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट है, आई विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन हियर, कि सेक्शन नंबर जो 83 है, यहां पे जो लीवरेज है, इट इज अबव 7 years एंड अंडर 12, अबव 7 एंड अंडर 12, राइट? तो यहां पे लीवरेज दी गई सेक्शन 82 में, कि एक्सेप्शन में कवर किया गया कि इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 83 के अंडर इट इज अबव 7 एंड अंडर 12। और यहां पे मैं आपको एक हिंट देता हूं दैट सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 82, दिस इज अ कंप्लीट डिफेंस, दिस इज अ कंप्लीट डिफेंस, कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एज देखी जाएगी और ये अपने आप में टोटल डिफेंस है। बट जो सेक्शन नंबर 83 है, दिस इज पार्शियल डिफेंस। ऐसा क्यों? सेम पॉइंट, कि यहां पे चेक किया जाएगा कि जो 12 ईयर तक एज है, राइट, इट इज 7 till 12, बच्चे की मेच्योरिटी देखी जाएगी। अगर इफ द कोर्ट कैन मेक आउट, अगर जब सब कुछ केस चलेगा, इफ इट कुड बी मेड आउट के उसकी इतनी मेच्योरिटी थी, ही कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो ये चीज इस वे में ऐसे ऐसे गलत होगी, इन दैट केस विल बी हेल्ड लायबल। अदरवाइज इट इज अ पार्शियल डिफेंस, मतलब वही चीज है कि यहां पे पार्शियल डिफेंस है, वो प्रूव करने पे है, अगर इमेच्योर है देन उस चीज की लीवरेज मिलेगी, दैट इज एक्सेप्शन में कवर होगा। अगर मेच्योरिटी है, इन दैट केस देयर विल बी नो लीवरेज। तभी मैंने वर्ड यूज किया, दिस इज अ पार्शियल डिफेंस और 82 इज कंप्लीट डिफेंस। तो दोस्तों यहां पे मैंने वर्ड यूज किया था 7 years ऑफ एज, और 83 में यूज किया जो सेक्शन के अंडर जो वर्डिंग है, अबव 7 एंड अंडर 12। तो जिस बच्चे की, जिस चाइल्ड की एज व्हेन इट इज कंप्लीट 7, यहां पे लिखा है टिल 7, यहां पे है अबव 7 एंड अंडर 12। तो जो पूरा बच्चा जिसकी एग्जैक्ट 7 years ऑफ एज है,
इट विल बी कवर अंडर 82 और 83। उसको 82 के अंडर कवर किया गया कि 7 इयर्स जो एग्जैक्ट होंगे वो भी 82 में आएगा, बिकॉज इट इज फॉर द फेवर ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, और काफी एज है बच्चे की, विच अगर 7 साल का एक छोटा सा बच्चा है, ही कैन बी इंप्रूव्ड, राइट। तो लीवरेज दिया गया 82 तक, यहां पे कंप्लीट डिफरेंस मिलेगा, और एग्जैक्ट 7 भी 82 के अंडर आएगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 84, act of a person of unsound mind. Now section number 84, here the burden of proof is very strict. आप ये बेयर एक्ट पे मेंशन कर सकते हैं that burden of proof in case of section number 84 is strict, fine. and जो 84 है इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि ये भी वही ऐसा सेक्शन है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, that act of person of unsound mind is covered under what section? Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, right? तो यहां पे आपको सेक्शन नंबर, ठीक है, और इस पे ना 84 के अंडर आप एक मेंशन कर सकते हैं मैक नॉटन केस, ठीक है। 84 के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप यहां पे इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इट इज सेक्शन नंबर 85, और ये सेक्शन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। लंबा चौड़ा क्वेश्चन पुट किया जाता है सेक्शन नंबर 85 में से कई बार। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। तो यहां पे एक वर्ड का ध्यान रखना, इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, अगेंस्ट हिज विल। तो यहां पे जो एमसीक्यू में कई बार जो प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, जब भी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर whenever the facts change, मतलब जो जनरल रूल है इट इज अगेंस्ट हिज विल, बट अगर सारे का सारा फैक्ट ये दिया हुआ है कि जी ऑफेंस हुआ, बंदा इंटॉक्सिकेटेड था, ऐसा था वैसा था, बट एंड में क्लियर ये किया है दैट विल, जो वॉलंटरली उसने इंटॉक्सिकेट किया, मतलब अगर वो खुद ड्रिंक करता है, तो यहां पे जो वर्डिंग है सेक्शन की, इट इज इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, दैट मींस voluntarily intoxication is not an offense. इसका भी आप एक इंपॉर्टेंट केस लॉ नोट कर सकते हैं, दैट इज वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ठीक है। चाहे आप जो मेन ये है कि इस सेक्शन के अंडर वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, PEPSU, इसको आप नोट कर सकते हैं अगेंस्ट सेक्शन नंबर 85। तो यहां पे हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आपको जो भी फैक्ट्स दिए जाते हैं, वेदर अ पर्सन इज लायबल या उसको डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ याद ये रखना है वॉलंटरी जो वर्ड है और जो अगेंस्ट हिज विल है। अगर फैक्ट्स वॉलंटरी की तरफ है तो बिल्कुल डिफेंस नहीं मिलेगा, और अगर आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है दैट इट वाज अगेंस्ट हिज विल, उसको पता नहीं था या जबरदस्ती, जैसे भी आप अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स आपको ये क्वेश्चन आंसर करना होगा, राइट। अब जो सेक्शन नंबर 86 है, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। तो 85 में बात की अगेंस्ट हिज विल, 86 में साफ साफ लिखा है पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर पर्सन को पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज है, इवन इफ ही इज ड्रंक, उस केस में डिफेंस नहीं होगा। तो एग्जैक्ट वर्ड है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। चाहे वो ड्रंक था, बट मान के चला जाएगा कि अगर वो ड्रंक ना होता, उसको वो सेम नॉलेज और वो लेवल था अंडरस्टैंडिंग का, ही विल नॉट गेट द बेनिफिट। और इस सेक्शन के अंडर
जो आपको सबसे ज्यादा चीज ध्यान में रखनी है अंडर सेक्शन 86, दैट एक्सेसिव इंटॉक्सिकेशन, कि बंदा जी बहुत ज्यादा ड्रंक था, इस वजह से उसकी जो माइंड वर्क नहीं किया, या इस वजह से वो उस चीज को फ्रेम नहीं कर पाया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दिस इज नॉट एन डिफेंस, राइट? एक्सेसिव ड्रंकनेस या इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अ डिफेंस, फ्रेंड्स, राइट? होप आपको यहां तक थोड़ा क्लियर हुआ होगा टॉपिक के रिगार्डिंग, कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है टिल सेक्शन नंबर 86। फाइन। अब जो सेक्शन नंबर 87 है, यहां पे मैं कुछ आपके साथ फैक्ट डिस्कस करूंगा, राइट? सबसे पहले एक बार सेक्शन की लैंग्वेज देखते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्सेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है, ए ने कोई ऐसा एक्ट किया जिसके लिए उसने बी से कॉन्सेंट लिया। एग्जाम्पल है कि जैसे कोई भी आप ले सकते हैं कि कोई गेम कर रहे थे या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे, ठीक है? सिंपल सा वर्ड, जो वर्ड यूज किया जाता है सिंपल हिंदी में, दैट इज तलवारबाजी। दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे, ए ने बी का कॉन्सेंट लिया कि यार अगर कोई तेरे को चोट लगी, आई एम नॉट लायबल फॉर इट, ठीक है? बी को अगर हर्ट कॉज होगा, इन दैट केस ए विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफेंस। बट जो सेक्शन की हेडिंग है, आप ध्यान से फिर से पढ़िए, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्सेंट। यहां पे विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, दैट मीन्स किसी भी तरह का हर्ट अलाउ हो जाएगा, कि ठीक है ए ने बी के साथ कॉन्सेंट लेके गेम प्ले किया, अगर बी को हर्ट कॉज हुआ, इन दैट केस ए विल नॉट बी लायबल। बट अगर बी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट होता है, इन दैट केस विल बी लायबल, राइट? ध्यान से फिर से सेक्शन की लैंग्वेज चेक करते हैं। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, मतलब वहां से बार बार उसको मना कर रहे हैं कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age। सबसे पहली बात, इसमें आपको एज का ध्यान रखना है। दूसरी बात कि यहां पे डेथ और ग्रीवियस हर्ट की बात नहीं कर रहे, मतलब कोई जनरल हर्ट होता है या इंजरी कॉज होती है, उसका डिफेंस है, राइट? अगर डेथ या ग्रीवियस हर्ट हुआ, दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 87। लाइकवाइज अब सेक्शन नंबर जो, वैसे जो एक फैक्ट है, जो सेक्शन नंबर 87, 88, 89, राइट? तो यहां पे एक मैक्सिम यूज किया जाता है, वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है? तो आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम ने, इनमें से कोई भी सेक्शन देके, वोलेंटी नॉन फिट, राइट? वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, FITINJURIA। तो आप इसको नोट कर सकते हैं इन द बेयर एक्ट कि ये मैक्सिम किनके साथ डील करता है। इट इज मेनली पर्टेनिंग टू सेक्शन नंबर 87, 88, 89, राइट? अब 88 के अंडर, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कॉन्सेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, राइट? यहां पे आपको मैं सिर्फ एक सिंपल सा एक वर्ड बोलूंगा, ठीक? तो यहां पे आपको सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन बताऊंगा, दैट एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कॉन्सेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनल बेनिफिट। जैसे कि एग्जांपल क्या है, डॉक्टर। तो 88 के अंडर यहां पे बेनिफिट मिलता है, तो आप इसका जब एग्जांपल भी चेक करेंगे, अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड हु सफर्स अंडर अ पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ। मतलब जो डॉक्टर का काम है, इट इज टू सेव, मतलब बच्चे को, वो किसी को भी बचा रहा है, राइट? तो यहां पे उसकी कोई भी इंटेंशन, जिसको हम बोलते हैं पूरे आईपीसी के अंडर, कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या उसका कोई गिल्टी माइंड है यहाँ पे, नहीं। क्या उसकी कोई ऐसी इंटेंशन है, नहीं। तो जहां पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा और डॉक्टर एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है,
इन दैट केस 88 के अंडर इसको जो जनरल एक्सेप्शन के अंडर इनको कवर किया गया है, लीवरेज यहां से मिलती है, चाहे किसी की डेथ कॉज हो, ही विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 88। अब जो इसके बाद था सेक्शन नंबर 89, इसमें आपको जो मेन है दैट इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स, दैट इज प्रोवाइजो क्या कवर्ड है। देयर आर 4 प्रोवाइजो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देन एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। तो ये भी 88 के मिलता जुलता सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 88। जैसा कि डॉक्टर को वहां पे बेनिफिट था, यहां पे अगर किसी का कंसेंट नहीं भी लिया और डॉक्टर ने किसी को बचाया या बचाना चाहा विदाउट द परमिशन ऑफ द गार्डियन और समवन, इवन देन ही इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 89। अब प्रोवाइडेड यहां पे पॉइंट फिर से वही है, अगर उसने जानबूझ के कुछ गलत किया वहां पे ऑब्वियसली फिर इंटेंशन देखी जाएगी। अदरवाइज 89 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी को बचाते हैं इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन, इन दैट केस अ पर्सन विल बी प्रोटेक्टेड। लाइक एग्जांपल जैसे है डॉक्टर का। एक कॉन्सेंट वैलिड कब है? कोई भी ऐसा कॉन्सेंट व्हेन अ कॉन्सेंट इज वैलिड, ठीक है। तो वैलिडिटी के लिए आपको यह देखना है वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट इट शुड नॉट बी, मतलब एक तरह की ये नेगेटिव डेफिनेशन है कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तब कॉन्सेंट वैलिड होगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, फियर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, consent of insane is not a valid consent. Fourth, intoxication. Fifth is by child. मतलब अगर इसको दूसरे वे अराउंड देखें, अगर किसी भी कॉन्सेंट में फियर नहीं होगा, मिसकॉन्सेप्शन नहीं होगी, इंसेन का पॉइंट नहीं इन्वॉल्व और वो बच्चा भी नहीं था, इंटॉक्सिकेटेड नहीं था, दैट मींस इट इज अ वैलिड कॉन्सेंट। बट अगर किसी भी तरह का फियर इन्वॉल्व था, मिसकॉन्सेप्शन थी, इंसेन था, इंटॉक्सिकेटेड था या चाइल्ड था, इस केस में इट विल बी अ नॉट अ वैलिड कॉन्सेंट, ठीक है। और इसमें जो कॉन्सेंट ऑफ चाइल्ड है, unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age। यहां पे आपको एज का बहुत ध्यान रखना है, राइट। और दोस्तों जब हम बात करते हैं, जैसे हमने 82 83 के अंडर कवर किया कि एज जो है 7 इयर्स, देन बात की 7 to 12, और कुछ ऐसे केसेस में जैसे जब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं वहां पे 18 इयर्स क्यों है? सिविल ऑब्लिगेशंस जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं देयर इट इज द एज इज 18 इयर्स। तो उन केसेस में इसलिए रखा गया ऐसा एज डिफरेंस ताकि जब भी कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा किसी भी ऐसी पोजीशन में ना हो, अगर वो बच्चा है मतलब 13 साल 14 साल या 15 साल का होगा, तो ऑब्वियसली जो सेकंड पार्टी है, द सेकंड पार्टी इफ मैच्योर, अगर वो बड़े होंगे, दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड। इस वजह से सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में एज का डिफरेंस रखा गया सो दैट अ पर्सन कैन बी मैच्योर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक हमने सेक्शन नंबर 90 तक कवर किया। इवन दिस इज एक्चुअली अ इनिशिएटिव कि आपको एटलीस्ट जो एग्जामिनेशन है उसका एक ओवरव्यू मिल पाए, एंड ऑब्वियसली आई थिंक कि कईयों को इससे हेल्प मिलेगी वीडियो से। दे आर गेटिंग आउट के बेयर एक्ट में कहां से क्या चीज मार्क करनी है और क्या चीज पढ़नी है फॉर बेसिक जो प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं हम। जब बात करते हैं फॉर द फर्दर पार्ट, आप अगर इस इन वीडियोस इनिशिएटिव को हेल्प करना चाहते हैं, यू कैन शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और अभी तक के लिए वी विल बी कवरिंग टिल सेक्शन नंबर 90, राइट। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ट्राई योर बेस्ट टू अटेंड दैट पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज उसमें मैं प्राइवेट डिफेंसेस का, क्योंकि वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, जब तक उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाया जाएगा प्राइवेट डिफेंसेस को, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी टू अपीयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।